आज अपने ध्यान के लिए पढ़ेंगे रोमियो 8 अध्याय उसका 8 और 9 वचन। Romans chapter 8 verse 8 and 9. रोमियो 8 उसका 8 और 9 वचन। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वे उसका जन नहीं। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਤਮਿਕ ਹੋ। ਪਰ ਤਦੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸੋ ਉਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। So then, those who are in the flesh cannot please God, but you are not in the flesh, but in the Spirit, if indeed the Spirit of God dwells in you. Now, if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not his. Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। Today we are going to meditate about fleshly character and spiritual character. आज हम अपने शारीरिक स्वभाव और आत्मिक स्वभाव के बारे में देखेंगे। Here we can see two group of people. यहाँ हम लोग दो झुंडों को देख सकते हैं, Fleshly people and spiritually people. एक है शारीरिक लोग और दूसरे हैं आत्मिक लोग। Those who walk according to fleshly life, they cannot pleasing unto God. और जो शरीर के अनुसार चलते हैं वो परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। We are reading 8 verse, so then they that are in the flesh cannot please God. और 8वें वचन में देखते हैं जो कोई शारीरिक दशा में है वह परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता। We are not in the flesh but in the spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. Now if any man have not Spirit of Christ, he is none of his. परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वे उसका जन नहीं। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। Last week we are studying walk by spirit, walk by faith and not by sight. पिछले हफ्ते हमने पढ़ा कि हमें विश्वास की दृष्टि से चलना है, आंखों की दृष्टि से नहीं चलना। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। Today we must grow in the spiritual life. और आज हमें अपनी आत्मिक जिंदगी में बढ़ना है। For that purpose only every week we are coming in His presence. और उसी के लिए हम हर हफ्ते परमेश्वर की हुजूरी में आते हैं। Especially we should give room for the Holy Spirit. The Spirit only can help to live a holy life and spiritual life. और खास करके हमें पवित्र आत्मा के लिए जगह देना और पवित्र आत्मा ही हमारी मदद करेगा परमेश्वर में बढ़ने के लिए और पवित्रता की जिंदगी जीने के लिए। The baptism of the Holy Ghost only help us to lead the spiritual life. पवित्र आत्मा ही हमारी मदद करता है कि हम मसीह जीवन को अच्छी तरह जी सकें। We are all in the flesh. हम सारे शरीर में हैं। Worldly people also living in the fleshly body. और दुनियादारी के लोग भी इस शरीर में ही जी रहे हैं। From the childhood till the end, the fleshly character will work in every humankind. और बचपन से लेकर एंड तक हर एक इंसान में वही शारीरिक स्वभाव काम करता है। But we are coming in His presence to grow in the spiritual life and spiritual character. पर हम जो उसकी हजूरी में इसलिए आते हैं कि हम आत्मिक जिंदगी में और आत्मिक स्वभाव में बढ़ सके। When we read in Galatians chapter 5, there we can see flesh against spirit and spirit against flesh lusted. गलातियों 5 में हम लोग पढ़ते हैं कि जो शरीर है वो आत्मा के विरुद्ध और आत्मा शरीर के विरुद्ध होता है। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। But we should overcome the flesh by the Spirit only. लेकिन आत्मा के द्वारा हमें जो शरीर के ऊपर जय को प्राप्त करना है। Galatians chapter 5 verse 17 onwards we can see fleshly characters. और गलातियों 5 के 17 से आगे हम लोग पढ़ते हैं कि जो हमारी शारीरिक स्वभाव है उसके बारे में। That's why in the 17th we are reading for the flesh against flesh lusteth against the spirit and the spirit against the flesh, and these are contrary the one to other. 17 वचन में हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। So that he cannot do the things that he would.
और इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना कर पाओ। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। Whenever we come in His presence, we should give room for the Holy Ghost. जब भी हम परमेश्वर की हुजूरी में आए, पवित्र आत्मा के लिए जगह दें। We should not walk according to the fleshly. शरीर के अनुसार ना चलें। Fleshly minded is death. और जो शरीर पर मन लगाना वो मौत है। But the spiritual minded is life and peace. लेकिन आत्मा में मन लगाना वो जिंदगी और शांति है। Whenever give room for the Holy Spirit, we can receive that life and peace in our spiritual life. जब भी हम पवित्र आत्मा के लिए जगह देते हैं तो वो जिंदगी और वो शांति हम अपनी जिंदगी में प्राप्त करते हैं। From the childhood, the child grew in the fleshly character. और बचपन से ही जो बच्चा है वो शरीर के स्वभाव में बढ़ता है। Some children continuously growing in the evil character. और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बुरे स्वभाव में बढ़ते जाते हैं। Some children are growing in good character. और कुछ अच्छे स्वभाव में बढ़ते हैं। But good character is not help to inherit the kingdom of God. लेकिन जो अच्छा स्वभाव है वो भी परमेश्वर के जो राज्य को प्राप्त करने के लिए cannot inherit the kingdom of God. वो भी अच्छा स्वभाव भी परमेश्वर के राज्य में हमें लेके नहीं जा सकता। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। That's why we should receive the Holy Spirit. इसीलिए हमें पवित्र आत्मा को प्राप्त करना है। God promised in the last days I will pour out the flesh, the Spirit, all the flesh. परमेश्वर का वादा है कि आखिरी दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर ढेलूंगा। Those who are not receiving the baptism of the Holy Spirit, you should pray in the presence of God and receive that the baptism of the Holy Ghost. जितनों ने भी पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाया उन्हें प्रार्थना करनी चाहिए और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना चाहिए। By water, by Spirit only we can enter into the kingdom of God. और आत्मा और पानी से ही हम लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। Those who obey the water baptism and receiving the Holy Spirit, they only can enter into the kingdom of God. जितने पानी का बपतिस्मा लेते हैं और पवित्र आत्मा पाते हैं वही परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। That's why every day we should grow in the spiritual character. इसीलिए हर दिन हमें आत्मिक स्वभाव में बढ़ना है। I'm not going to explain about the fleshly character. आज मैं जो है वो शारीरिक स्वभाव को नहीं बताऊंगा। But we should water all the character, water all the steps. We should receive that spiritual character. लेकिन आत्मिक स्वभाव में बढ़ने के लिए क्या क्या हमें करना है उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। Fleshly character is openly. और जो fleshly character is open. जो शरीर का स्वभाव होता है वो खुला होता है। All are knowing what is the fleshly character. और सब लोगों को पता है कि शरीर का स्वभाव क्या है। But today we are going to meditate about how we receive that spiritual character. लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे कि उस आत्मिक स्वभाव को हम लोग कैसे प्राप्त करें। When we more spend in the presence of God, that much we are receiving that spiritual character. जितना हम परमेश्वर की हुजूरी में समय को व्यतीत करेंगे उतना हम लोग जो है आत्मिक स्वभाव को प्राप्त पाएंगे। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ। When we receive that spiritual character, और जब उस स्वभाव को पा लेंगे, we are receiving four kinds of character in our life. और उस स्वभाव को पाने के बाद 4 तरह के स्वभाव हम लोग प्राप्त कर लेंगे। Otherwise, we are receiving 4 blessing in our spiritual life. नहीं तो हम 4 तरह की आशीषें अपनी आत्मिक जिंदगी में प्राप्त करेंगे। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ। First of all, we are seeing in this same verse. पहला हम उसी वचन में पढ़ते हैं। Romans chapter 8 verse 8 and 9. रोमी 8 का 8 और 9 वचन में पढ़ेंगे। Here we can see 4 things we can receiving this blessing our character. और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 4 आशीषें जो इस स्वभाव से हमें मिलती हैं। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। When we live according to the spirit guidance, जब हम आत्मिक चलावट के अनुसार चलते हैं, we are receiving first of all we are receiving the God's strength. और सबसे पहली आशीष जो हम प्राप्त करते हैं परमेश्वर की सामर्थ। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ। Secondly, we are this spiritual character help us to
pleasing God, otherwise will help us to God's will. और दूसरा हमें ये स्वभाव हमें मदद करता है कि हम परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। Thirdly, that the Holy Spirit help us to give us the holy God's image. और तीसरा हम परमेश्वर के समान स्वरूप कैसे बन सकते हैं उसमें हमारी मदद करता है। Fourthly, we are receiving that God's heritage. और चौथा हम जो परमेश्वर ने हमारे लिए मिरास रखी है उसको प्राप्त हम लोग कैसे कर सकते God's inheritance. हैं और जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा हुआ है मिरास। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। One by one we can consider about this. और एक एक करके हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। When we receive that spiritual character, और जब हम आत्मिक स्वभाव को पा लेते हैं we are receiving the God's strength. और पहला हम लोग परमेश्वर की सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं। When we go to Acts of the Apostle chapter 1 verse 8, what do we read there? और प्रेरितों के काम 1:8 पे हम लोग क्या पढ़ते हैं? The Holy Ghost come upon them, they receive the strength. और जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा तो उन्होंने सामर्थ्य को प्राप्त किया। You shall receive power after the Holy Ghost is come upon you. और जब उन्होंने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया उनके ऊपर सामर्थ्य उतरी। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। This strength is help us to walk according to the spirit life. और ये जो सामर्थ्य है हमारी मदद करेगी कि हम अच्छी तरह आत्मिक जिंदगी जी सके। Not by might, not by power, but by His Spirit. ना तो बल से ना शक्ति से, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। With our own strength, with our own power, we cannot do spiritual life. अपनी सामर्थ्य के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा हम लोग आत्मिक जिंदगी नहीं जी सकते। So many people of God backsliding. Otherwise, they are not coming to the presence. What is the reason? They walking according to the fleshly character. That's why they cannot able to walk in the spiritual life. बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं, कई लोग चर्च नहीं आते हैं। वो इसीलिए होता है कि वो अपनी सामर्थ्य से चलते हैं, आत्मा की सामर्थ्य से नहीं चलते। Always their mind is carnal mind. और हमेशा उनका मन जो है शारीरिक मन की तरह ही रहता है। They are giving importance to the worldly works. और हमेशा जो दुनियादारी के काम है उन्हीं को वो इम्पोर्टेंस देते हैं। They are not giving for the spiritual life. और अपनी आत्मिक जिंदगी को ज्यादा महत्व वो लोग नहीं देते। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ। That's why they are losing the strength in the inward spiritual life. और इसीलिए वो आत्मिक जीवन में अपनी सामर्थ्य को खो बैठते हैं। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ। By His own power, by His own our strength, we cannot do this spiritual life. अपनी खुद की शक्ति के द्वारा, खुद की सामर्थ्य के द्वारा आत्मिक जिंदगी हम लोग नहीं जी सकते। Carnal mind is death. अपनी जो शारीरिक मन है वो मौत है। Spiritual life is peace and strength. और जो आत्मिक Peace and life. और आत्मिक जो जिंदगी है वो शांति है और सामर्थ्य से भरी हुई। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ। When we give room for the Holy Spirit, we can receive that strength. और जब भी पवित्र आत्मा के लिए हम लोग जगह देंगे उस सामर्थ्य को हम लोग प्राप्त करेंगे। I will give you one example. एक उदाहरण मैं तुम लोगों को देता हूँ। In Old Testament, पुराने नियम में Enoch walked with God. हनोक जो है परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। In the time the Holy Ghost, Spirit of God is moving in this world, but the Holy Ghost not pour out. उन दिनों में पवित्र आत्मा इस दुनिया में तो घूमता था, लेकिन पवित्र आत्मा किसी के ऊपर नहीं उतरता था। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ। But Enoch walked with God. लेकिन हनोक परमेश्वर के साथ साथ चला। How is able to walk with God? कैसे हुआ कि वो परमेश्वर के साथ चला? In that time there is no Bible, otherwise no preaching. उन दिनों में ना तो कोई प्रचार था, ना कोई बाइबल थी। But he walked with God. लेकिन वो परमेश्वर के साथ चला। How he is able to receive that strength? ऐसे कैसे संभव हुआ कि उसको सामर्थ्य हुई कि वो परमेश्वर के साथ चला? Once upon a time, Adam walked with God. He heard the voice of God. He know all about all things. एक समय था जब आदम ने परमेश्वर के वचन को सुना और परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को वो जानता था। In the same manner, Enoch also walked with God. और उसी तरह हनोक भी परमेश्वर के साथ चला। That's why he was not. और इसीलिए वो उठा लिया गया। He pleasing unto God. उसने परमेश्वर को खुश किया। He received God's power. और उसने परमेश्वर की सामर्थ्य को प्राप्त किया। If we walk with God, we need a power to walk, strength to walk with God. अगर वो परमेश्वर के साथ चल रहा है तो उसको परमेश्वर के साथ चलने के लिए सामर्थ्य भी चाहिए। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। In the gift of the Holy Ghost, there is so many gifts and in the Holy Ghost
two kinds of the power. और पवित्र आत्मा में दो तरह की सामर्थ है। First of all, gift of the Spirit. और other one is fruit of the Spirit. और पहला जो है पवित्र आत्मा का जो वरदान और दूसरा जो है वो पवित्र आत्मा के फल। Gift of the Spirit is using for others. और जो पवित्र आत्मा का वरदान है वो दूसरों के लिए इस्तेमाल करने के लिए, not ourselves, but you're using for others. और वो सामर्थ आप दूसरों के लिए इस्तेमाल करते But हो। fruit of the Spirit is using for others, ourselves. लेकिन जो पवित्र आत्मा का फल है वो इसलिए है कि हम अपने आप के लिए उसको इस्तेमाल करें। So many people of God, so many men of God using gifts and talents, and they famous in the world. और बहुत सारे परमेश्वर के लोग जो हैं वो पवित्र आत्मा के वरदान को इस्तेमाल करते हैं और दुनिया में बहुत फेमस हो जाते हैं। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। That's gift of the Spirit using for others, but they not for themselves. और जो पवित्र आत्मा का वरदान है वो दूसरों के लिए इस्तेमाल करने के लिए है, खुद के लिए नहीं। But fruit of the Spirit is ourselves. लेकिन जो पवित्र आत्मा का फल है वो इसलिए है कि अपने आप के लिए इस्तेमाल That's करें। why in all ways we should eat the fruit of the Spirit and receive the strength in our life. और इसीलिए हमेशा में पवित्र आत्मा के फल को खाना है और अपनी जिंदगी में सामर्थ्य को प्राप्त करना है। What is the gift fruit of the Spirit? और पवित्र आत्मा का फल क्या है? We are reading Galatians chapter 5. There are so many fruit of the Spirit we can see. गलातियों 5 में हम बहुत सारे पवित्र आत्मा के फलों को देखते हैं। Galatians chapter 5 verse 22 onwards we can see that. गलातियों 5 का उसका 22 से आगे जब लोग Whenever we come in His presence, we should eat that fruit of the Spirit and receive the power of the strength in our inward life. जब भी हम परमेश्वर की हुजूरी में आए उस पवित्र आत्मा के फलों को खाएं और अपने अंदरूनी जिंदगी में सामर्थ्य को प्राप्त करें। We should grow the spiritual character. अपने आत्मिक जो स्वभाव है उसमें बढ़े। In New Testament we can see one man of God. और नए नियम में हम लोग एक परमेश्वर के जन को देखते हैं। Before the Holy Ghost pour about them, इससे पहले कि पवित्र आत्मा जब जगत में उतरा था, he walked with Jesus. वो प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चला। Wherever Jesus going, he also following him. जहाँ जहाँ यीशु मसीह जाते थे वो भी उसके पीछे जाता था। Jesus done so many miracles and wonders. और प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे चमत्कार और चिन्ह दिखाए। Always he walked with Jesus. हमेशा वो जन यीशु मसीह के साथ साथ चला। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। Last end of the life of Jesus. और जब प्रभु यीशु मसीह के जीवन का अंत था, when he caught out by the enemies. और जब वो दुश्मनों के द्वारा यीशु मसीह पकड़ लिए गए, Peter betrayed and denied. और तब जो है वो पतरस ने डांटा उन लोगों को डांटने लगा। Denied. उस समय पतरस जो है यीशु मसीह का उसने इनकार कर दिया। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ। For why he denied? और उस समय पतरस ने यीशु मसीह का इनकार क्यों किया? He did not have the holy power of the Holy Ghost. क्योंकि उसके पास पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नहीं थी। Only seeing miracles and wonders, and he following Jesus Christ. और सिर्फ उसने चिन्हों और चमत्कारों को देखकर ही यीशु मसीह के पीछे चल रहा When था। the temptation will come, when the problems will come, though so many people are not following Lord Jesus Christ, they are following, they are backsliding. और जैसे ही परीक्षा उस पे आई, उसने यीशु मसीह का इनकार किया, उसी तरह बहुत सारे लोग जो है चिन्ह चमत्कारों के पीछे ही यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। They denied God. वो परमेश्वर का इनकार करते They हैं। accusing God. वो परमेश्वर पे दोष लगाते हैं। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। When the problems come in our life, जब परेशानी हमारी जिंदगी में आए, we should receive that strength to stand in the spiritual life. तब हमें उस सामर्थ्य को प्राप्त करना है कि हम आत्मिक जिंदगी में खड़े रह सकें। This same Peter, he stand for God. और यही पतरस यीशु मसीह के लिए खड़ा रहा। How he can able to stand for God? और ये कैसे हो पाया कि वो यीशु मसीह के लिए खड़ा रहा? After the Holy Ghost came upon him, जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा, he received that Holy Spirit. उसने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया। He is able to stand for God. और तब वो यीशु मसीह के लिए खड़ा He रह सका। suffered for God. उसने परमेश्वर के लिए कष्ट उठाया। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। When John the Gospel chapter last chapter, when there
there we can see यूहन्ना उसके आखिरी अध्यायों में हम लोग क्या पढ़ते हैं? other man guard up our line. Other man guard up our line. दूसरा मनुष्य आपका कमर को बांधेंगे. और दूसरा मनुष्य आपके कमर को बांधेंगे. Who is that other man? जो दूसरा मनुष्य वो कौन है? That is the Holy Spirit. और वो पवित्र आत्मा है. Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ. That's why he can receive that holy strength in his life. और इसीलिए उसने अपनी जिंदगी में सामर्थ्य को प्राप्त किया. That's why the Lord Jesus Christ said unto Peter what is said. और इसीलिए यीशु मसीह ने पतरस को क्या कहा? Matthew the Gospel chapter 16 verse 18. What do we read there? मत्ती उसका 16 उसका 18 में हम लोग क्या पढ़ते हैं? But I say unto thee that thou Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. और मैं तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे. We are the church of God. हम भी परमेश्वर का मंदिर हैं. Individually we are the temple of God. हम अकेला परमेश्वर का Our चर्च है. body soul is the temple of God. हमारा आत्मा प्राण परमेश्वर का मंदिर है. Against this church, that though no power can prevail against that church. और हमारे ऊपर कोई भी अधोलोक की शक्ति प्रबल नहीं हो पाएगी. Dear children of God, you may face so many problems and circumstances. हो सकता है कि आप बहुत सारी परिस्थितियों और परीक्षाओं से होके जा रहे You हो. may going through so many tribulation. बहुत सारे कष्टों से जा रहे हो. Remember one thing, none of the power cannot prevail against you. और एक बात याद रखो कि कोई भी चीज तुम्हारे ऊपर प्रबल ना होने पाएगी. Because the power of God is in you. क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर है. The power of the Holy Ghost strengthen you. और पवित्र आत्मा आपको सामर्थी बनाता है. Power of the Holy Ghost came upon you. You are the witness of God. और जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरता है आप परमेश्वर के गवाह बनते हो. Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो. Secondly, what do we read there? और दूसरा हम लोग क्या पढ़ते हैं? We are that is spiritual character. Otherwise, the Spirit came upon us. और दूसरा जो पवित्र आत्मा का स्वभाव है या जब आत्मा हमारे ऊपर उतरता है We are pleasing unto God. तब वो हमारी मदद करता है कि हम परमेश्वर को खुश कर सकें. Romans chapter 8 verse 9 we can see. रोमियो 8 का 9 में क्या पढ़ते हैं? We are pleasing unto God. और हमें परमेश्वर को खुश करना है. We are doing the will of God. हमें परमेश्वर की मर्जी को करना है. Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो. For the same example, Enoch also pleasing unto God. और उसी का उदाहरण देके हम लोग देखते हैं कि हनोक ने भी परमेश्वर को खुश किया. That's why he was not. और इसीलिए वो उठा लिया गया. Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो. How we pleasing unto God? कैसे परमेश्वर को हम लोग खुश कर सकते हैं? Hebrews chapter 11 verse 5. What do we read there? इब्रानियों 11 का 5 में हम लोग क्या पढ़ते हैं? Hebrews chapter 11 verse 6. What do we read there? इब्रानियों 11 का 6 में क्या पढ़ते हैं? But without faith it is not impossible to please Him. क्योंकि विश्वास के बिना उसको प्रसन्न करना असंभव है. Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो. Without faith it is not impossible to please Him. विश्वास के द्वारा उसको प्रसन्न करना अनहोना है. God called to please Him only. परमेश्वर ने इसीलिए बुलाया कि हम उसको खुश कर सके. Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की The तारीफ हो. power of God, the Spirit of God pour out in our life to please God. परमेश्वर का सामर्थ इसीलिए हमारे ऊपर उतरता है कि हम उसको खुश कर सके. Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो. Always we should please unto God. हमेशा हमें परमेश्वर को खुश करते रहना We है. should not do our own will, otherwise own wish. अपनी खुद की इच्छाएं और मर्जी को पूरी नहीं करना. We should not please our own self. अपने हमेशा खुद को ही प्रसन्न नहीं करते रहना. We are the temple of God. हम परमेश्वर का मंदिर है. We are 1 Corinthians chapter 6 verse 19. What do we read there? पहला कुरिन्थियों उसका 6 का 19 में क्या पढ़ते हैं? Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो. 1 Corinthians chapter 6 verse 19. What do we read there? पहला कुरिन्थियों 6 का 19 में क्या पढ़ेंगे? We are the temple of God. हम परमेश्वर का मंदिर है. We are brought with the price. और हम लोग दाम देकर मोल लिए गए हैं. Therefore glorify God in your body and your spirit which are God's. और अपने शरीर से और अपने मन से परमेश्वर की आराधना करो. Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो. For example, we buy one vehicle or otherwise something. और उदाहरण के लिए हम लोग एक गाड़ी या कुछ भी खरीद के लेके आते We हैं are using for ourselves only. और उस गाड़ी को अपने लिए ही इस्तेमाल करते We हैं are giving not for others. और दूसरों
दूसरों को नहीं देते हम लोग। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। God brought us with a great praise. और परमेश्वर ने भी हमें बहुत दाम देके What मोल is लिया। that praise? और वो दाम क्या है? It is not money. और वो कोई पैसा नहीं He है। gave a precious blood of Christ. यीशु मसीह ने अपना कीमती लहू हमारे लिए दिया। That's why always we should please unto God. और इसीलिए हमेशा हमें परमेश्वर को खुश करना है। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। When we see life of Jesus, जब हम यीशु मसीह के जिंदगी को देखें, when He obeyed the baptism of the water baptism, जब उसने पानी का बपतिस्मा लेने को माना, after take the water baptism, He came out. और जब पानी का बपतिस्मा लेकर वो बाहर आए, What is the voice came out from the heaven? और तब स्वर्ग से क्या आवाज आई? Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। Matthew the Gospel chapter 3 verse 17. What do we read there? मत्ती 3:17 में क्या पढ़ेंगे? And lo, a voice from heaven saying, This is my beloved Son, in whom I will please. और वहाँ स्वर्ग से आवाज आई कि ये मेरा इकलौता पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। When we obey the commandments of God, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते we हैं, are pleasing unto God. तब हम परमेश्वर को खुश करते हैं। Those who are not obey the water baptism, और जो पानी का बपतिस्मा लेने की आज्ञा नहीं मानते, you should obey the water baptism and please unto God. आपको ये आज्ञा मान के पानी का बपतिस्मा लेना है और परमेश्वर को खुश करना है। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ। Why we are living in this world? और क्यों इस दुनिया में हम लोग जी रहे हैं? Why God added more years and years in our life? क्यों परमेश्वर दिनों को और सालों को हमारी जिंदगी में बढ़ा के दे रहे हैं? We should spend the more time in the presence of God. ताकि परमेश्वर की हुजूरी में ज्यादा से ज्यादा समय को बिता सके। We have time to work on all entertainments. हमारे पास समय होता है कि सारे एंटरटेनमेंट देखने का और काम करने का, But we are not spending in the presence in His presence. लेकिन उसकी उपस्थिति में हम लोग समय नहीं बिताते। Matthew the Gospel chapter 17 verse 5. What do we read there? मत्ती 17:5 में क्या पढ़ते हैं हम लोग? Jesus went up to a mountain and prayed there. और यीशु मसीह पहाड़ पे जाके प्रार्थना करते थे। Along with 3 disciples, they went them. और 3 अपने चेलों को साथ में लेके जाते हैं। There his face was shining. और तब यीशु मसीह का मुंह जो है वो चमकने लगा। His clothes also shine. और उसके जो कपड़े हैं वो भी चमकने लगे। There what the voice of God said unto that. और तब स्वर्ग से परमेश्वर की आवाज ने क्या कहा? He spake, behold, a bright cloud overshadowed them, and behold, a voice out of the cloud, which said, This is my beloved Son, whom I am pleased. वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से ये शब्द निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। The more spend that in the presence of God, we are pleasing unto God. और जितना समय हम परमेश्वर की हुजूरी में बिताते हैं उतना हम परमेश्वर को खुश करते हैं। When we say other words, और जब हम लोग और शब्दों को बोलते हैं, we not spend in the presence of God, we are grieving unto God. और जब हम ऐसे ही शब्दों को बोलते रहते हैं तब हम परमेश्वर को खुश नहीं करते बल्कि उसको दुखी करते हैं। We are grieving unto God. तब हम परमेश्वर को दुखी करते हैं। That's why, dear children of God, we should spend the time in the presence, more time in the presence of God and pleasing unto God. और इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा समय परमेश्वर की हुजूरी में बिताना है और परमेश्वर को खुश करना है। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। What we read the third thing. और तीसरी हम लोग क्या चीज देखते When हैं? the spiritual character came in our life, और जब आत्मिक स्वभाव हमारी जिंदगी में आता है, we are receiving the image of God. और तब हम परमेश्वर के स्वरूप के ऊपर बदलते जाते हैं। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। Romans chapter 9, 6 verse 4 to 6. What do we read there? और रोमियो 6:4 से 6 में हम लोग क्या पढ़ते हैं? When we take the water baptism, जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं, we are put on Christ. और तब हम मसीह को पहन लेते हैं, All things are passed away. और सारी पुरानी चीजें बीत गई। We are not. और अभी हम वो नहीं रहे। We are not ourselves. अभी हम अपने नहीं रहे। We are put on Christ. हमने मसीह को पहन लिया। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। That's why we should always showing the God's image. और हमेशा इसीलिए हमें परमेश्वर के स्वरूप को दिखाना है। That's why the God make Adam.
इसीलिए परमेश्वर ने आदम को बनाया। Genesis chapter 1 verse 26, what we did read there. और उत्पत्ति 1 का 26 में क्या पढ़ते हैं हम लोग? He made Adam his own image and own structure. और परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप के ऊपर बनाया। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। He made his own image. और परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप के ऊपर Let बनाया। us make man in own our image after own likeness. हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता में बनाएं। That's why we should always seek above all things. और इसीलिए हमें इस सबसे बढ़कर परमेश्वर को ढूंढना है। Colossians chapter 3 verse 1, what we read there. कोलोसियां 3 का 1 जब पढ़ेंगे, We are not of this world. हम इस दुनिया के नहीं हैं। We should seek above things. हमें जो ऊपर की बातों को ढूंढना है। For one, किसके लिए ढूंढना है? we should receive that own image, God's image. ताकि हम परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार हो जाएं। If a man be in Christ, अगर कोई मनुष्य मसीह में है, 2 Corinthians chapter 5 verse 17, what do we read there? दूसरा कुरिन्थियों 5 का 17 में क्या पढ़ते If हैं? any man be in Christ, अगर कोई भी इंसान मसीह में he है is a new creature. और वो एक नई सृष्टि है All things are passed away. और पुरानी बातें बीत गई हैं Behold, all things are become और new. देखो सब बातें नई हो गई हैं। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ If हो। we put on Christ in our life, अगर हम अपने आप में मसीह को पहन लेंगे, if we walk according to the spiritual life, अगर हम आत्मिक जिंदगी की तरफ we are बढ़ेंगे, growing His own image and in own likeness. तो हम परमेश्वर की समानता में बनते जाएंगे। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ। Lastly, what do we read there? और आखिरी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? Romans chapter 8 verse 14 and 15, what do we read there? रोमियो 8 का 14 और 15 में क्या पढ़ते हैं? Romans chapter 8 verse 14 and 15. रोमियो 8 का 14 और 15 Kindly read that. पढ़ेंगे। इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा से चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि तुमको वास्तव की आत्मा नहीं मिली फिर भी भयभीत हो, परंतु लेपनप की आत्मा मिली है जिसे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ As हो। many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. और जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के We पुत्र are हैं। the sons of God. हम परमेश्वर के पुत्र हैं We are the inherited. और हम परमेश्वर के वारिस हैं। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। We have the authority to cry upon Father. और हमें ये अधिकार मिला है कि हम हे अब्बा हे पिता करके पुकारे। When once we are sin, और जब हम पाप में थे we are the children of this world. और तब हम इस दुनिया के पुत्र थे, But God gave a price and brought in His presence. लेकिन परमेश्वर ने एक दाम दिया और हमें मोल लिया He brought with a great price. और एक बड़े दाम देकर उसने हमें मोल लिया By the holy blood, He brought up in His presence. और अपनी पवित्र खून से उसने हमें अपनी हुजूरी में We लेकर आया। have a authority to call upon Father. और तब हमें अधिकार मिला कि हम उसको ए अब्बा करके बुला सकें। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। For example, उदाहरण के तौर पे I have no child. मेरा कोई बच्चा नहीं है। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। If I will give some praise and brought a child, अगर मेरा कोई बच्चा नहीं है, मैं एक दाम लेके एक बच्चे को मोल लेता हूँ that child becomes to me. और तब वो बच्चा मेरा हो जाता है All authority to overcome that child. और मेरे जितने भी अधिकार होंगे वो मैं अपने बच्चे को दे दूंगा। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। Likewise, उसी तरह once we are in this world, और जब हम इस दुनिया में थे, we are walk according to the worldly people. इस दुनिया के लोगों के अनुसार हम लोग चलते थे God brought in His presence with a great price. और परमेश्वर ने बड़ा दाम देके हमें अपनी उपस्थिति में लेकर आए We are the inheritance of God. और हम परमेश्वर के वारिस बन गए By the Holy Ghost, और पवित्र आत्मा के द्वारा we are the children of God. पवित्र आत्मा के द्वारा हम उसके बच्चे बन गए। Here we can see यहाँ हम लोग क्या पढ़ते हैं? in the 15th word, what do we read there? 15 वचन में क्या पढ़ते हैं? For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby cry upon Father. और तुम लोगों को डर का आत्मा नहीं मिला बल्कि वो आत्मा मिला है कि तुम परमेश्वर को अपना पिता कह के पुकार सको। God gave a promise 365 times, fear not.
365 बार परमेश्वर ने वादा किया है कि मत डर। So many people of God immediately the fear they are ruling in their life. और जब भी परमेश्वर के बड़े लोग हैं जो कुछ भी चीज आती है वो बड़ी जल्दी डर जाते हैं। God gave you the promise, fear not. लेकिन परमेश्वर ने 365 बार वादा किया कि मत डर। I will not leave you nor forsake you. मैं ना तुमको भूलूंगा ना त्यागूंगा। We are the sons of God, we are the children of God. हम परमेश्वर के पुत्र हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं। By the Holy Ghost we are the children of God. और पवित्र आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर के बच्चे हैं। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। Children of God, children of God, परमेश्वर के बच्चे, sons of God, और परमेश्वर के or पुत्र, inheritance of या God. परमेश्वर के वारिस। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। By three kinds of adoption in our life. और 3 तरह से परमेश्वर ने हमें अपना लिया है। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। That's why 1 John chapter 3 verse 2 and 3, what do we read there? 1 John chapter 3 verse 2 and 3. और पहला यूहन्ना उसका 1 John chapter 3 verse 2 and 3. पहला यूहन्ना 3 का 2 और 3 में जब पढ़ते हैं, What do we read there? क्या पढ़ते हैं हम लोग? Now we are the children of God. अब हम परमेश्वर के बच्चे हैं। And it does not appear what we shall be. और हमें ये पता नहीं कि हम लोग क्या बनेंगे। But we know that when He shall appear, we shall be like Him. और लेकिन हमें ये पता है कि जब वो आएगा तो हम उसी के समान हो जाएंगे। We shall be as He is. और हम वैसे ही हो जाएंगे जैसा परमेश्वर है। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ। Now we are the children of God. अब हम परमेश्वर के बच्चे हैं। When Lord Jesus Christ is going to appear. जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, that's why the Holy Spirit gave in our life. और इसीलिए पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में दिया When गया He है। appear, जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, we are going to see as He is. और tब हम यीशु मसीह जैसे हैं वैसे ही देखेंगे। Shall we all close our eyes? सारे अपनी आंखों को बंद Shall करें, we all kneel down in His सारे presence? घुटनों पर आ जाएं। The Lord Jesus Christ is going to come very soon. और प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं। Those who walk according to flesh, और जितने शरीर के अनुसार चलते हैं, carnally mind is death. और जो शरीर पे मन लगाना पाप है, Spiritual life is life and peace. और आत्मिक जिंदगी जीवन और शांति है। Every day we should receive that life and peace. और हर दिन हमें वो जिंदगी को प्राप्त करना है। By the Holy Ghost we should receive that strength. और उस जो पवित्र आत्मा के द्वारा उसको प्राप्त करना है। By the Holy Ghost we should please unto God. और पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर को खुश करना है। By the Holy Ghost we receive that image and likeness. और पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की समानता में बढ़ते जाना है। By the Holy Ghost we are going to see as He is. और पवित्र आत्मा के द्वारा हम यीशु मसीह जैसे हैं। Now we are the children of God. और हम परमेश्वर के भी बच्चे Now हैं। we are the sons of God. अब ये परमेश्वर के पुत्र हैं। The Lord Jesus Christ is going to very soon, coming very soon. और यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं। Shall we all submit ourselves सारे अपने आप को समर्पित and करें receive that power and strength in our life? और वो सामर्थ को अपनी जिंदगी में प्राप्त करें। May God help us. परमेश्वर हमारी मदद करे। Hallelujah. यीशु ने मुझे अपनाया, मुझको है अपना बनाया। यीशु ने मुझे अपनाया, मुझको है अपना बनाया। तू है मेरा, मैं हूँ तेरा, यीशु तू ही है सहारा। तू है मेरा, मैं हूँ तेरा, यीशु तू ही है सहारा।
सहारा, तू है मेरा, मैं हूँ तेरा, यीशु ही है सहारा, तू है मेरा, मैं हूँ तेरा, यीशु ही है सहारा, तू है मेरा, मैं हूँ तेरा, यीशु ही है सहारा। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. आमीन। एक दो मिनट के लिए हम पुकारेंगे, परमेश्वर का जोरी में हम पुकारेंगे। हम परमेश्वर का बच्चे हैं और ये आशीष बरकत हमारे लिए रखा है। जो परमेश्वर को पर विश्वास रखकर परमेश्वर को पुकारते हैं वो सभी आशीष पा लेते हैं। मत डर, मैं तुम्हारा साथ, जगत का अंत तक मैं तुम्हारा साथ है। परमेश्वर हमको वायदा किया, जितनी मर्जी बीमारी, कमजोरी और परेशानी, कष्ट, मुसीबत आने से भी परमेश्वर हमारा हाथ नहीं छोड़ता, हाथ पकड़ के चलाता है, आत्मा के द्वारा हमको जीवन में बनाता। उस आत्मा, पवित्र आत्मा का अभिषेक पा लीजिए। हालेलुया। बंधनों को छोड़ दे, बंधनों को छोड़ दे, बंधनों को छोड़ दे। नाम आत्मा से आजादी, आत्मा से आजादी, आत्मा से आजादी, आत्मा से आजादी। धीरा घटा, 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 धीरा आज करेंगे। हम शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलने के लिए परमेश्वर हमको देव पुत्र वचनों के लिए हम तारी करेंगे। जो लोग परमेश्वर का जुरी में आत्मा के अनुसार चलाया जाता है, परमेश्वर का जुरी में सामर्थ्य पाता है, परमेश्वर को प्रसन्न करता है और परमेश्वर का स्वरूप और उसके सामर्थ्य पाता है, परमेश्वर का वारिस बनता है। इसलिए हर रोज उस पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा बलवंत होकर बल को पर बल पाने के लिए हमारी एक परमेश्वर मदद करना चाहिए। महिमा को पर महिमा पाने के लिए परमेश्वर हमको अनुरोध देना चाहिए, उसके लिए हम दारी भरेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord। हमारा आराधना शुरू से लेकर अब तक पवित्र आत्मा चलाया, हमारी को आशीष किया, उसके लिए हम तारी भरेंगे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। सबका पूरा परमेश्वर जय देकर चलाना, जय तारी भरेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord। आज जितने लोग परमेश्वर का जुरी में आया, एक परमेश्वर आशीष के उनका परिवारों को भी आशीष करना, जय तारी भरेंगे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। आज जितने लोग नहीं आए, आने वाला अब तक मेरी एक परमेश्वर का जुरी में आने के लिए परमेश्वर मदद करना, जय तारी भरेंगे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। प्राणात्मा शरीर परमेश्वर को हाथों में सांदे दे तारी भरेंगे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। प्रभु यीशु मसीह का जल्द आगमन के लिए हमारे एक परमेश्वर लायक बना, जय तारी भरेंगे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। खुदा बेटे पवित्र आत्मा के लिए हम तारी भरेंगे। स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद तारीफ करते हैं खुदावंद प्रभु जी, आज भी सप्ताह के पहले दिन जी उठने वाले दिन
दिन में खुदावंदा तो हम अपने सम्मुख में लेके आए, इसलिए तेरा धन्यवाद तारीफ करते खुदावंदा। मौसम जब खुदावंदा प्रभु जी प्रतिकूल था, लेकिन खुदावंदा तो उसको अनुकूल बना के दे के खुदावंदा अपने लोगों को लेके आए, इसलिए तेरा धन्यवाद तारीफ करते खुदावंदा। मीटिंग में लाए और एक बहन भाइयों के लिए तेरा धन्यवाद तारीफ करते हैं, जितने लोग खुदावंदा कई प्रकार के समस्या के साथ, कई प्रकार के दुख के साथ, कई प्रकार की परेशानियों के साथ तेरे सम्मुख में आए खुदावंदा। उनके सारी परेशानी दुखों को खुदावंदा प्रभु जी दूर करते हुए, बीमारियों को दूर करते हुए छंगा करके देने के लिए भी सहायता करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। शुरुआत से लेकर आखिर तक तेरा आत्मा हमारे बीच में मंडलाता रहे खुदावंदा। सच में तू हमारे छुड़ाने वाला परमेश्वर, तू हमें खुदावंदा जीवित परमेश्वर के खुदावंदा हमारे बीच में प्रकट होकर खुदावंदा हमें खुदावंदा जिलाया, इसलिए खुदावंदा तेरा धन्यवाद तारीफ करते खुदावंदा प्रभु जी। खास करके खुदावंदा गवाही की खुदावंदा सेवा के बोझ उठाए, आशीष करके दिया खुदावंदा। जितने लोगों ने गवाही में प्रार्थना के मांग के उनकी सारी जरूरतों को पूरे करके देने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। खास कर खुदावंदा वचन की सेवा का बोझ उठाए, वचन खुदावंदा हम सुनने वाले ने वचन के अनुसार हमारे जीवन को बनाने के लिए भी सहायता करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। शरीर पर मन लगाना खुदावंदा मृत्यु है, और खुदावंदा प्रभु जी आत्मा पर मन लगाना खुदावंदा जीवन और शांति है करके खुदावंदा वो वचन को उठाकर खुदावंदा प्रभु जी तूने हमसे बातें किया खुदावंदा। हम शरीर के अनुसार नहीं चलने वाले, बल्कि खुदावंदा आत्मा के अनुसार चलने के लिए खुदावंदा सहायता करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। शरीर खुदावंदा आत्मा के विरोध में, आत्मा खुदावंदा शरीर के विरोध में हमेशा चलता रहता है खुदावंदा, इसलिए हम खुदावंदा शरीर के अनुसार नहीं खुदावंदा आत्मा के अनुसार खुदावंदा चलते हुए खुदावंदा जीवन बताने के लिए मदद करना चाहिए। जब हमें खुदावंदा आत्मिक रीति से खुदावंदा प्रभु जी चलते बढ़ते जाते हैं तो खुदावंदा हम कई प्रकार के आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं खुदावंदा। हम तेरे वचन पढ़ा खुदावंदा, खास करके खुदावंदा जब हम तेरे खुदावंदा अजूरी खुदावंदा प्रभु जी आत्मा के अनुसार चलते हैं तो खुदावंदा प्रभु जी तेरे से सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं खुदावंदा। वो सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं खुदावंदा प्रभु जी एक गवाह बन जाने के लिए खुदावंदा तू हमारी सहायता करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। खास करके खुदावंदा प्रभु जी जैसे खुदावंदा हम खुदावंदा प्रभु जी आत्मिक खुदावंदा खुदावंदा प्रभु जी वरदानों के अनुसार नहीं खुदावंदा, लेकिन आत्मिक के फलों को खा के खुदावंदा हम हमेशा बढ़ते जाने के लिए खुदावंदा सहायता करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं खुदावंदा प्रभु जी। हम जितने खुदावंदा प्रभु जी जितने अभी तक खुदावंदा तेरे इस खुदावंदा वरदान को खुदावंदा प्रभु जी पवित्र आत्मा के अभिषेक के सामर्थ्य को नहीं प्राप्त किया, वो लोग भी पवित्र आत्मा के ऐसे अभिषेक के सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए खुदावंदा सहायता करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। इसलिए इस स्वभाव में बढ़ने के लिए भी सहायता करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। दूसरा खुदावंदा प्रभु जी हम खुदावंदा तुझे प्रसन्न करने वालों के खुदावंदा पाए जाने के लिए तू मदद करना चाहिए। जैसे खुदावंदा हम तेरी आज्ञाओं को मानते हैं खुदावंदा वीर्य कर खुदावंदा, तो हम तेरे खुदावंदा प्रभु जी प्रसन्न कर सकते हैं। जैसे हम लोग ने भी खुदावंदा तेरे खुदावंदा प्रभु जी तेरे साथ चला और खुदावंदा तुझे प्रसन्न किया खुदावंदा प्रभु जी, इसलिए हम भी खुदावंदा तुझे प्रसन्न करते हैं खुदावंदा होकर बदलने के लिए तू मदद करना चाहिए। हम तेरी आज्ञाओं को विधियों को मानने वाले होकर बदलने के लिए तू मदद करना चाहिए। जैसे यीशु ने भी खुदावंदा पानी के बपतिस्मा जब लिया तो खुदावंदा प्रभु जी वहां है खुदावंदा उसने भी खुदावंदा प्रभु जी तभी उसका आवाज आती है ये मेरा प्यारा पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न है खुदावंदा। इसलिए हम खुदावंदा प्रभु जी जितने लोगों ने अभी तक पानी का बपतिस्मा नहीं दिया खुदावंदा प्रभु जी, वो लोग पानी का बपतिस्मा क्या क्या मानते हुए खुदावंदा प्रभु जी बपतिस्मा ले खुदावंदा तुझे प्रसन्न करने वाले होकर बदलने के लिए सहायता करना चाहिए। जैसे यीशु जब रूपांतरण पहाड़ पर चढ़ा तो खुदावंदा वहां पर भी खुदावंदा ज्यादा से ज्यादा जब उसने खुदावंदा तेरे सम्मुख में खुदावंदा प्रभु समय बिताया तो तब खुदावंदा प्रभु जी वहां पर भी खुदावंदा उसने खुदावंदा एक आवाज को हम सुनते खुदावंदा इसने मेरे प्रसन्न के ऐसे मैं प्रसन्न हूं खुदावंदा। इसलिए तेरी हजूरी में ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना का आत्मा देके तुझे प्रसन्न करने वाले खुदावंदा तेरे साथ खुदावंदा तेरी हजूरी में ज्यादा से ज्यादा बैठने वाले खुदावंदा अनुभव पाए जाने के लिए सहायता करने के लिए हम तेरे दुआ करते हैं। और खुदावंदा प्रभु जी हम खुदावंदा संसार की बातों के नहीं लेकिन स्वर्ग की बातों की हमेशा खोज में लगे रह के खुदावंदा तुझे खुदावंदा प्रभु जी तेरे खुदावंदा स्वरूप में बदल खुदावंदा प्रभु जी स्वरूप में बदलने के लिए खुदावंदा तो हमारी सहायता करने के लिए हम तेरे दुआ करते हैं। जब हम खुदावंदा प्रभु जी तेरे सम्मुख में खुदावंदा हम हमेशा खुदावंदा प्रभु जी आत्मा के द्वारा चलाए चलने के लिए खुदावंदा तू मदद करना चाहिए। जब हम आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं तो हम तेरे परमेश्वर तेरे पुत्र बन जाए। तो हमें एक खुदावंदा प्रभु जी तूने अधिकार दिया, तूने हमें खुदावंदा हक दिया खुदावंदा हे अब्बा हे पिता कहने का खुदावंदा अधिकार दिया। इसलिए खुदावंदा उस खुदावंदा अधिकार के द्वारा तूने हमें जो रखी मिरास और मिरास को प्राप्त करने के लिए तो हमारी सहायता करने के लिए हम तेरे दुआ करते खुदावंदा वचन अनुसार हमारे जीवन को बनाने के लिए सहायता करना चाहिए। पूरा सप्ताह खुदावंदा प्रभु जी अपनी आंख के पुतले के संभालने के लिए तो मदद करना चाहिए। अगुए लोगों को फसल देकर अगुवाई देकर चलाने के लिए मदद करना चाहिए। संडे स्कूल की सेवा का बोझ उठा चलाने के लिए आशीष करके देने के लिए भी सहायता करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। हमारे फेतों के काम का भी जल्दी जल्दी होने के लिए सहायता करने के लिए हम तेरे से प्रार्थना करते हैं। खुदावंदा प्रभु जी सारे बंदरों को तोड़ने के लिए सहायता करना चाहिए और खुदावंदा जैबेस मीटिंग का बोझ उठा चलाने के लिए आशीष करके देने के लिए मदद करना चाहिए। हमारे सारे बच्चों को खुदावंदा प्रभु जी जवानों को खुदावंदा बेदार करने के लिए तेरे से प्रार्थना करते हैं। तेरे हाथों में तैयार तेरे खुदावंदा राज्य के हम सबको तैयार करो। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हो। Now may the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the sweet fellowship of the Holy Spirit rest and abide with every one of us now and until Jesus returns in glory. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah.